Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we are discussing today. So the first article is on the aspects of India and China boundary dispute. So यहाँ पर बात करेंगे first of all India और China के बीच के boundary के बारे में समझेंगे. देन देखेंगे कि इन बाउंड्रीज में अगर कोई क्लैशेस हो तो इन क्लैशेस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स है, व्हाट आर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म्स हियर एंड कौन से मेजर्स हैं जो कि एज ऑफ नाउ एक्ट कर रहे हैं. दैट वुड बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is with respect to the aspects of cervical cancer. So first of all यहाँ पर देखेंगे कि कैंसर क्या होता है, देन देखेंगे कि सर्विकल कैंसर क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस कैंसर, क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैंसर, एंड देन समझेंगे कि व्हाट आर द जैब्स जो कि सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट हम लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द गर्ल्स. The third article is on the aspects of India abstaining from the UNSC vote on Myanmar. So इसे समझने के लिए first you need to understand कि India का क्या significance है when it comes to India-Myanmar relations, Myanmar का क्या significance है when it comes to India-Myanmar relations, and then only we will be understanding why India has abstained. So that analysis, that nuances we will be seeing in our third article. The fourth article is on the aspects of collegium system. अब collegium system काफी बार डिबेट पे रह चुका है, so we'll be reviewing on the nuances of this collegium system. क्या है collegium system, क्यों collegium system फॉर्म हुआ, कैसे collegium system इवॉल्व हुआ, and what are the challenges or what are the issues when it comes to collegium system, that we'll be seeing in our fourth article. And then the fifth one is on a new concept known as greenwashing. So यहाँ पर देखें कि greenwashing होते क्या है, कैसे ग्रीन वॉशिंग इंपैक्ट करते इकोनॉमी को, एंड व्हाट आर द सेफगार्ड्स व्हेन इट कम्स टू ग्रीन वॉशिंग, दैट विल बी सीइंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. And as usual, the sixth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of India and China boundary disputes. अब जब हम लोग इंडिया और चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट्स में बात करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डायलॉग्स, देयर इज अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म, देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू दिस बाउंड्री डिस्प्यूट, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो कि एज ऑफ नाउ काफी कंटेंशियस है. एंड दैट इज व्हाई ऑल द नुआंसेस दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव आई डिस्कस इन आवर 13th December वीडियो, जहां पर आई स्टार्ट ऑफ विद दी सोर्स ऑफ द टेंशन, क्या है सोर्स ऑफ टेंशन व्हेन इट कम्स टू द इंडिया एंड चाइना बाउंड्रीज, एंड देन वी डिस्कस कि क्या क्या है एग्रीमेंट्स, व्हाट आर दी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो कि एक्ट कर रहे हैं बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, एंड देन बिल्डिंग ऑन दिस बेसिक्स देन आई डिस्कस्ड कि हाउ वी वुड बी मैपिंग द इंडिया एंड चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट्स, जहां पर इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, इसके स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव्स एंड इंपैक्ट्स दैट आई डिस्कस इन आवर 13th December video. So please refer to this video so that you have a very good understanding of the India and China boundary dispute. With that, now let's move to our next aspect, that is on the aspects of cervical cancer. अब यहां पर क्योंकि cervical cancer is a topic related to science and technology, so let's start with the basics of this cancer. So the first thing to understand when it comes to the aspects of CVC or cervical cancer is the aspects of HPV. What is this? It is an abbreviation of human papilloma virus. So ये virus है. So बात करते हैं इसके basic nuances के बारे में. The first point to note here is that it is one of the most common viral infection of the reproductive tract, particularly in case of females. Males में कम होते हैं, females में ज़्यादा होते हैं because their reproductive tract are much more hostile towards this infections. Second point to note here is that there are more than 100 types of HPV, so there's a lot of diversity. और particularly अगर sexual contact के through spread करने वाले HPVs की बात करें, so there are more than 40 types of it. और इन 40 types में से 2 of the types of HPV causes genital warts, जबकि बाकी जैसे जितने भी HPVs हैं, more than dozen are those जो कि कैंसर कोज करते हैं. नाउ दिस कैंसर कैन बी ऑफ वेरियस फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल इट कैन take the form of cervical cancer, yeah, anal cancer, penile cancer, valvular cancer, vertical cancer. So there's a lot of cancers that can be caused because of the continued infection of HPV. और इससे थ्रू स्प्रेड करने डिसीज को हम लोग कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. अब इसके बेसिक एस्पेक्ट्स को समझते हैं. सो एज ए टोल जितने भी टाइप्स हैं एचपीवीज के, सो देर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ एचपीवीज जो कि आउट देयर हैं. अब इन 100 टाइप्स में से मोर देन 40 टाइप्स ऐसे हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड करते हैं,
और इन 40 टाइप्स में से 12 टाइप्स के एचपीवीज ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलरली कैंसर कॉज करते हैं। नाउ दिस कैंसर कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, जहां पर ये इन्फेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो गले की तरफ अगर करते हैं दैट इज नॉन एज ओरोफेजिनल कैंसर, या वल्वर में करते हैं दैट इज नॉन एज वल्वर कैंसर, पेनाइल में करते हैं पेनाइल कैंसर, जेंटल में करते हैं जेंटल रॉड्स, एनल कैंसर, देयर इज अ लेट ऑफ कैंसर्स जो कि इस वायरस के कारण कॉज हो सकता है। एंड वन सच कैंसर इज नॉन एज सर्विकल कैंसर। नाउ दिस सर्विकल कैंसर इज द कंडीशन जहां पर HPVs का कंटिन्यूड इन्फेक्शन होता है ऑन द सर्विक्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन इट लीड्स टू सर्विकल कैंसर। अब बात करते हैं सर्विकल कैंसर के ऊपर। सो सर्विकल कैंसर जो है इट इज अ कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और ये जो इन्फेक्शन अगर कंटिन्यूड प्रोलॉन्ग्ड वे में अगर हम लोग देखें इन्फेक्शन को, सो इट गेट्स द फॉर्म ऑफ एन कैंसर इन द लेटर स्टेजेस। सो एज आई टोल्ड, लॉन्ग टर्म लास्ट इन्फेक्शन जो है विद सर्टेन टाइप्स ऑफ HPVs इज द मेन कॉज ऑफ सर्विकल कैंसर। सो इवन दो इनिशियल स्टेजेस में ये इन्फेक्शन के तौर पे होता है, बट अगर प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन हो सो इट लीड्स टू सर्विकल कैंसर। और वर्ल्ड वाइड बात करें सो सर्विकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर्स एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन द वुमेन्स, जो कि particular reproductive age group में, that is 15 to 44. So there is a lot of issues at stake when it comes to cervical cancer, और इसीलिए there is a lot of debate also. अगर सर्विकल कैंसर की नेचर के बारे में बात करें सो इट इज प्रिवेंटेबल, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ वुमेन्स जो कि इसके कारण मरते हैं। अगर पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स की बात करें सो WHO के अकॉर्डिंगली 1 वुमन एवरी 8 मिनट में मरते हैं इन द कंट्री। नाउ दिस कंट्री इज इंडिया। इंडिया में हर 8 मिनट में एक वुमन जो कि इस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है शी डाइज बिकॉज ऑफ द सर्विकल कैंसर, एंड दिस इज द केस जबकि ये प्रिवेंटेबल है, एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद वेरियस सोर्ट्स ऑफ वैक्सीन्स। सो यहां पर प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, द ओनली एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेजर व्हेन इट कम्स टू सर्विकल कैंसर इज स्क्रीनिंग एंड द वैक्सीनेशन, जो कि हम लोग कर सकते हैं। एंड एज ऑफ नाउ द गवर्नमेंट इज एम्फसाइजिंग ऑन वैक्सीनेशन। सो अब बात करते हैं कि सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट कौन से वैक्सीन हैं। सो वैक्सीन की बात करें, क्योंकि सर्विकल कैंसर इज कॉज बाय HPV, सो दी वैक्सीन आर ऑल्सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन इटसेल्फ, और इन वैक्सीन को आप कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी प्रोटेक्शन दैट दे प्रोवाइड। सो एज आई टोल्ड यू देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ HPV जिसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं, और इस क्लासिफिकेशन में फॉर एग्जांपल जो क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन है, ये वैक्सीन होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट 4 टाइप्स ऑफ HPVs। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस गर्डासिल। देन बाइवेलेंट वैक्सीन है। बाइवेलेंट वैक्सीन वैसे वैक्सीन होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट दिस HPVs ऑफ 2 टाइप्स। फॉर एग्जांपल सर्वरिक्स इज देयर, एंड देयर इज दिस नॉन वैलेंट वैक्सीन जो कि प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। सो इट इज एडमिनिस्टर्ड टू दोज वुमेन्स या दोज गर्ल्स जो कि एज ऑफ नाउ इज नॉट एक्सपोज टू दिस वायरस। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस गर्डासिल 9। अब बात करते हैं सर्वोवैक्स के ऊपर। सो सर्वोवैक्स इज द वैक्सीन जो कि हम लोग एडमिनिस्टर करने वाले हैं हमारे गर्ल्स ऑफ एन पर्टिकुलर एज ग्रुप। So what is this nuance of this vaccine? So the first point to note here is that it is India's first or India's quadrivalent HPV vaccine. So please remember as of the basics जो कि मैंने आपको बताया, it provides protection against 4 types of HPVs. और इसका जो मकसद है दैट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वुमेन्स व्हेन इट कम्स टू द एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विकल कैंसर, और इससे उनके जो लाइव्स हैं, उनकी जो इम्यूनिटी है दैट हैज टू बी बूस्ट। एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वैक्सीन है इट वाज इंट्रोड्यूस वे बैक इन 2009, बट इसके बावजूद भी इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इनटू द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो ये मेन स्ट्रीम इम्यूनाइजेशन जो स्कीम्स हैं उसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, बट इवन आफ्टर दैट इट वाज इंट्रोड्यूस वे बैक। सो एज ऑफ नाउ व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग कि इसके साइडलाइंस में ही ये सर्वैक्स वैक्सीन वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एंड ये जो है ये जो वैक्सीन है दे वुड बी प्रोवाइडिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज वो जनरेट करेंगे, और इसके थ्रू वो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेंगे सो दैट द वुमेन्स कैन फाइट अगेंस्ट द वायरस जो कि सर्विकल कैंसर कॉज करता है, दैट इज HPV। नाउ विद दैट नाउ लेट्स मूव टू द एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। सो ये जो इम्यूनाइजेशन है इस ग्रुप को हम लोग एब्रिवेट करके कहते हैं एज NTAGI। अब इस ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज दिस इज द ग्रुप जो कि फाइनल डिसीजन देते हैं कि क्या किसी वैक्सीन को हमें
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर डालना चाहिए कि नहीं. सो दैट इज द पावर जो कि इस ग्रुप के अंदर है. सो दैट इज वाई दिस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव ऑल्सो. So ये जो group है, it was established as per an executive order. So please remember, it's not a constitutional body, it's not a statutory body, but it's an executively order based or formed organization. और इस group का जो formation है, it was way back in 2001 and it operates under the Ministry of Health and Family Welfare. So ये क्या करता है, ये एडवाइजरी प्रोवाइड करता है, ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन या कोई भी सर्विसेज रिलेटेड टू द वैक्सीन इम्यूनाइजेशन फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वैक्सीन, जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिसीजेस को इन द कंट्री. सो अगर कोई भी डिसीजेस हैं जो कि प्रिवेंटेबल है यूजिंग द वैक्सीन, और उसके रिसर्च, उसके एडवाइजरी, उसके सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी नुआंसेस हैं उसको एडवाइस करने के लिए दिस ग्रुप हैज बीन फॉर्म्ड. और इसकी जो मेंबरशिप है, दैट इज व्हाई इट्स क्वाइट डाइवर्स इन द नेचर. अब इसमें क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकल रिव्यूज व्हेन इट कम्स टू द साइंटिफिक एविडेंसेस जो कि किसी भी वैक्सीन के ऊपर होता है, दैट इज व्हाई उसे नुआंस करने के लिए, उसमें काइंड ऑफ डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए देयर इज एन पर्टिकुलर कमिटी नोन एज स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमिटी. सो एनटीजीए का जो स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमिटी है, द ओनली और द सोल रोल जो कि ये कमेटी करता है, दैट इज टू इन्वेस्टिगेट, दैट इज टू अंडरटेक. वो रिव्यू करते हैं कि क्या किसी वैक्सीन को हम यूज कर सकते हैं, क्या वो वैक्सीन जो है वो एफिशिएंट है, उसकी कितनी एफिकेसी है, उसमें क्या क्या है, मोर्टेलिटी. सो ऑल दिस नुआंसेस, ऑल दिस टेक्निकल रिव्यूज आर डन बाय दिस कमिटी. उसके बाद ये जो कमिटी है ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं एनटीजीआई को, एंड आफ्टरवर्ड्स द सबमिशन ऑफ दिस रिपोर्ट, एनटीएजीआई finalize this the decision, and that is how any vaccine is included under the universalization immunization program. So that is why this organization or this group is very important. With that, now let's move to our next aspect, that is on the aspects of India abstaining from the UNSC vote on the issue of Myanmar. So इसे समझने के लिए फर्स्ट यूनिट टू अंडरस्टैंड कि म्यांमार में क्या क्या सिग्निफिकेंस है और क्या क्या इश्यूज हैं. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. So the first point to understand this context of the article is कि आपको समझना होगा क्या है सिचुएशन म्यांमार का, क्या है सिनेरियो म्यांमार में. So म्यांमार में the military headed by the General Min Aung Hlaing, this person has taken over the control of the country. So as of now military control कर रहे हैं, it's not an elected representative जो कि head कर रहे हैं. जितने भी elected representatives हैं उन्हें outs कर दिया गया था under an military coup, and this general has taken over the control of the country. That is why he and his group, जिसे हम लोग कहते हैं junta, that is the group of military leaders, is now the head of the country. और कहने के लिए उन्होंने काफी सारे कमिटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने काफी सारे प्रोमिसेस दिए हैं. उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि इन द फ्यूचर स्टेज जब कंडीशन स्टेबलाइज हो जाए, सो दे हैड प्रॉमिस एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बट दैट इलेक्शन इज नोवेयर टू बी सीन इन द रीसेंट हिस्ट्री. सो दैट इज वाई काफी सारे स्टेक होल्डर्स, काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इस सिचुएशन के खिलाफ हैं, इस मिलिट्री कू के खिलाफ हैं, और इसीलिए काफी सारे वोटिंग्स भी हो चुके हैं, काफी सारे प्रपोजल्स हो चुके हैं, काफी सारे कंसेंसस हो चुके हैं. बट इवन आफ्टर ऑल दोज थिंग्स, इंडिया ने कभी भी एक हार्श स्टैंड नहीं लिया अगेंस्ट दिस सिचुएशन. अब उसे समझने के लिए यूनिट टू अंडरस्टैंड कि क्यों म्यांमार सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट. सो अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, द फर्स्ट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट म्यांमार इज जियोपॉलिटिकली वेरी मच सिग्निफिकेंट टू इंडिया, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया ज्योग्राफी है उसके बीच में प्रेजेंटेड इज दिस कंट्री कॉल्ड म्यांमार. और इसीलिए अगर इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कोरिलेशन करना है, उनके साथ कोलैबोरेशन करना है, देन इंडिया शुड हैव म्यांमार इन देयर साइड. सेकेंड पॉइंट नोट हियर इसके म्यांमार जो है, इट्स दी ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद इंडिया, दैट ऑल्सो विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया. Third point is that this country, Myanmar, is at the intersection of India's neighborhood first policy and Act East policy. और क्योंकि दोनों पॉलिसी में म्यांमार का एक मेजर रोल है, that is why the significance of Myanmar for India is huge. The same time, इंडिया का जो सागर है, that is the security and growth for all in the region, उसमें भी म्यांमार का एक मेजर रोल है. And
Another point or most important point जो कि आपको समझना है, that is Myanmar is not only significant when it comes to diplomacy or international relations, but इसके बावजूद भी म्यांमार के साथ जो relations है that is quite diverse in the nature, और उसे आप kind of summarize कर सकते हैं using the 5B formula, that is Buddhism, business, बॉलीवुड, भरतनाट्यम एंड बर्माटिक। सो इन पांचों चीजों में इंडिया और म्यांमार का कोरिलेशन है और इंडिया और म्यांमार रिलेट करते हैं एक दूसरे से, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस व्हेन इट कम्स टू म्यांमार फॉर इंडिया, और इसीलिए इंडिया म्यांमार को ऑफेंड नहीं कर सकता हैविंग गिविंग एन वोट और हैविंग गिविंग एन अल्टीमेटम टू द जनता, और इसीलिए इंडिया ज्यादातर चीजों में कंसेंसस भी हो, वोटिंग्स भी हो, इंडिया जनरली एब्सटेन्स एंड इंडिया provides for an quiet diplomacy. With that, now let's see some of the infrastructures जो कि इंडिया म्यांमार के साथ कोऑर्डिनेट करके एस्टैब्लिश कर रहे थे, and the first infrastructure is known as the IMT trilateral highway, that is India, Myanmar and Thailand trilateral highway. Now as you can see, this is an highway जो कि न्यू दिल्ली से होकर भूटान को साइडलाइंस पे टच करके इट गोज टू म्यांमार एंड देन टू थाईलैंड। सो दिस इज अ वेरी लॉन्ग हाईवे, और इस हाईवे का जो शिलान्यास है दैट वाज बिकॉज ऑफ द पॉइंट कि अगर हम लोग इसे कनेक्ट करें सो द कनेक्शंस और द ट्रेड बिटवीन दीज कंट्रीज वुड इंक्रीज, और इन तीनों कंट्रीज को म्यूचुअल बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ दिस हाईवे, एंड दैट इज व्हाई इवन द एशियन कंट्रीज आर आल्सो इन सपोर्ट ऑफ दिस, क्योंकि इसके थ्रू इंडिया जो है वो एशियन कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, उनके साथ ट्रेड कर सकता है, सेम टाइम इंडिया का जो मार्केट है दैट वुड बी फ्लरिशिंग, इंडिया कुड एक्सटेंड इट्स हैंड्स इनटू द मार्केट ऑफ एशियन कंट्रीज आल्सो. Another infrastructure project is known as the Kaladan multi-modal project. So ये जो project है it is between India's Kolkata and Myanmar's Sitwe. So ये जो project है it's an multi-modal project, एक joint project है between the India and Myanmar जो कि connect करना चाहता है ports of Kolkata and सितवे जो कि म्यांमार का एक प्रोविंस है। सो इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैं वो काइंड ऑफ रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, और उस नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसकी जो मार्केट है वो हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, और उसके थ्रू इंडिया का जो इकोनॉमिक मार्केट है, इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे हम बूस्ट कर पाएंगे। Another point to note here is that there is an aspect known as chicken neck. Now chicken neck is this region. अब ये जो region है because of the aspect of Bhutan, because of the aspects of China, ये जो region है this is very much significant for India. और इसके सिग्निफिकेंस को एक अल्टरनेटिव की तरह प्रोवाइड करने के लिए दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट अगर अरुणाचल में कोई भी रिसोर्सेज आपको ट्रांसफर करने हैं देन इट हैज टू गो थ्रू दिस रीजन, बट अगर ये प्रोजेक्ट हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं देन देयर वुड बी एन अल्टरनेटिव रूट ऑल्सो, वी कैन ट्रेवल थ्रू दिस रोड to Myanmar and then to northeast countries or northeast states like Arunachal Pradesh और Nagaland, और इससे क्या होगा, हम लोग एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं इस चिकन नेट को, तो जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस में एक और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस इंटरेक्शंस जो कि हम म्यांमार के साथ शेयर करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सिक्योरिटी इटसेल्फ. With that, now let's move to our next aspect, that is on the aspects of collegium system. अब जो collegium system है, it is one of the most debated topics, most talked topics as of now, and that is why we have already discussed the nuances of the system in our 9th December वीडियो, जहां पर वी स्टार्टेड ऑफ विद द आर्टिकल जो कि इन कंटेंशंस इन डिबेट्स का सोर्स है, इसमें क्या है लिखा हुआ, इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, इनमें क्या क्या क्लैरिटी की कमी है, उन क्लैरिटी को प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द इयर्स कौन से केसेस प्रोवाइड किए हैं, कौन से केसेस में क्या क्या जजमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइड किए हैं, ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. एट द सेम टाइम वी हैव डिस्कस्ड the challenges or the issues of the collegium system. So this is a very comprehensive topic जो कि हम लोग ने very comprehensive and holistic manner में cover किया है in our 9th December video. So please refer to this video so that you have a very good understanding of this topic. With that, now let's move to our next aspect. That is on the aspects of ग्रीन वॉशिंग. अब बात करते हैं ये ग्रीन वॉशिंग के ऊपर. नाउ दिस ए न्यू टॉपिक, दिस ए न्यू टर्मिनोलॉजी जो कि काइंड ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस टर्मिनोलॉजी को समझना काफी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स इटसेल्फ. So what is this terminology?
सो ग्रीन वॉशिंग को अगर सिंपल टर्म्स में कहें, सो इट इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रेन वॉशिंग। जैसे ब्रेन वॉशिंग में आप एक आइडियोलॉजी को थोप देते हो किसी के मन में एंड देयर इज नो डाउट कि वो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ जाए। सिमिलरली ग्रीन वॉशिंग आर ऑल्सो इन दी पैरेलल लाइन। सो ग्रीन वॉशिंग में क्या करते हैं आप? ग्रीन वॉशिंग में आप कन्वे करते हैं एक फॉल्स इंप्रेशन को, एक फॉल्स इंप्रेशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को आप कन्वे करते हैं। और ये कैसे करते हैं? इसे करने के लिए जो कंपनीज हैं, कंपनीज नॉन रिसाइक्लेबल या नॉन इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को भी वो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट करते हैं या इको फ्रेंडली तौर पे एडवर्टाइज करते हैं, दैट इज नॉन एज ग्रीन वॉशिंग। और इसके थ्रू वो क्या करते हैं? इसके थ्रू वो अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स प्रोवाइड करते हैं। और जो मार्केट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक प्लास्टिक बैग खरीद रहे हैं या आप एक सामान खरीद रहे हैं, नॉर्मल एक सामान हो सकता है कि वो प्लास्टिक हो सकता है कि आपके बैग्स हो। अगर वहां पर लिखा जाए कि इट इज नॉट रिसाइक्लेबल या इट इज नॉट इको फ्रेंडली, सो देयर आर चांसेस कि लोग जो हैं वो खरीदने से रुकें। सो उसके लिए कंपनीज क्या करते हैं? उसके लिए कंपनीज इवन दो इट नॉट बी रिसाइक्लेबल और इवन दो इट नॉट बी इको फ्रेंडली, उसमें क्या लिखते हैं? वो इको फ्रेंडली लिखाते हैं या वो रिसाइक्लेबल क्लेम्स प्रोवाइड करते हैं। और इस क्लेम्स के थ्रू वो क्या कर रहे हैं? वो जो मार्केट है ऑफ द इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, उस मार्केट को टैप करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस टर्म केम अप in the year 1986 by an environmentalist known as J. Westervelt, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड के बारे में उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में रखा। और इसमें क्या काम करते हैं वो? इसमें वो एक काइंड ऑफ आंख में धूल झोंकते हैं, वो एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करते हैं और जो बेनिफिट्स हैं जो कि इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को मिलने चाहिए, उन बेनिफिट्स को वो खुद लेना चाहते हैं, वो खुद लेते हैं। दैट इज व्हाई दिस ग्रीन वॉशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम प्रैक्टिसेस आउट देयर। With that, now let's move to our next aspect, that is on quiz of the day. So the first question is regarding the aspects of Panchamrit. The second question is regarding the consequences of farm loans waiver. Now both these questions are based on the aspects of current affairs. So please refer to this question, और इन questions के जो answers हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। As well as जो PPT है जिसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया, that also in the form of PDF you would get a link in the video's description itself. So stay tuned for more content, study hard, stay safe because the COVID is increasing, and with that, see you tomorrow.